fans of Rotary Club of Kanpur Industrial. I am Sushma Singh, bringing you our first edition of Adharshila in the form of a broadcast magazine. This is our effort to bring novelty and add some pizzazz to Adharshila. We have successfully completed 6 months of current Rotary year. It has been a very engaging year so far, and we promise to continue keeping you engaged, involved with many more fruitful activities. Without taking too much of your time, now I would like you to start enjoying our broadcast, which has been painstakingly prepared by Coordinator Publication and Visual Media Head Ann Ankur Singh, Print Media Head Ann Ritu Lakhotia, Creativity Head Ann Usha Somani. I request Ann Ankur Singh to take it up from here. थैंक यू सुषमा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं अंकुर रोटरी की तरफ से आधारशिला विजुअल एक नया कंसेप्ट लेकर के आई हूँ आप सबके सामने अपनी को होस्ट एंड रितु लखोटिया के साथ। Hi everyone. Hello, this is Ritu again, and we are very proud to be hosting this event today. Yes. This is definitely a very new concept for RCCare, and me and Ankur are going to do a very interesting segment, that is the interview of the man and the lady herself, the President Vivek Karwa and the lady Sunanda. They are energetic, they are happening, they are full of ideas, and moreover they are full of warmth. Please welcome them again, President Vivek and Sunanda Karwa. Hi. Hello. Hello. Hi. Hello, Bhabhi. How are you? Hello, Yeah. Vivek. Hello, Bhabhi. How are you? Please. Yeah. Please be seated. Hi. Thank you. हाय भैया, कैसे हैं आप? वेल भाभी, आप कैसे हैं? बस मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और वो बातें वहां तक पहुंचानी है। Okay. हमारे रोटरी में हर मेंबर के पास आप तक बातें जानी चाहिए। Sure. तो मैं शुरुआत करती हूँ इससे कि हम रोटरी में आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं, कुछ सोच के आते हैं, मैं ये करूंगी या ये करूंगा। तो आपने भी ऐसा बहुत कुछ सोचा होगा। तो आप क्या मुझे ये मेरे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके कितने फुलफिल हुए और कितने अभी बाकी हैं? ऑब्जेक्टिव्स मेरे जब मैं रोटरी में आया तो बहुत सारे थे, उसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव अभी पूरे हुए हैं। बट हाँ, अभी ये कहना जल्दी है क्योंकि अभी जून तक का टाइम बचा है। तो उसमें 2-3 मेरे ऑब्जेक्टिव्स और हैं जो मैं चाहूँगा पूरे हो जाएं। जैसे इंटर रोटरी RRPL, GTC वोकेशनल ट्रेडिंग सेंटर का था, और भी मेरे क्रिकेट इंटर पूरे डिस्ट्रिक्ट का कराने का मन है। बिल्कुल, That's a great idea. That's a lovely idea. Actually. Yes. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनंदा के लिए, जो फर्स्ट लेडी है। एक बहुत ही अजीब सा एक कॉन्सेप्ट होता है सुनंदा, दिस इज फॉर यू बेसिकली। व्हेन द मेंबर्स ऑफ RCCI लुक हैप्पी, वी नो व्हाई, बट व्हेन द फर्स्ट लेडी ऑफ RCCI लुक्स हैप्पी, वी रियली वंडर व्हाई. So really look happy. You do. I said a very pleasant smile. Yes, मैंने पहले ही Always कहा at your कि face. you are full of warmth, you are full of ideas. So I mean, why? I think I should take it as a compliment. It is. Sure, But sure. we need some input for this line now. No, this is just because of when I see the full satisfaction of my work or our work. So I just get happy कि members are happy and members are satisfied after this so much pandemic time. So it's great and it's an opportunity for us to serve them. Members, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा because अभी 6 महीने बाकी है and she definitely needs it all from you. Yes. बिल्कुल डेफिनेटली। और बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अभी बाकी है। और मैं अब आपकी तरफ आती हूँ विवेक भैया। मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरे ख्याल से आपने 2012 में क्लब ज्वाइन किया था एंड दिस इज नाउ कमिंग 2022, यानी ये 10 साल का बड़ा प्यारा सा सफ़र है जो आपने तय किया है। इस सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें
जो आपको याद हो, जो आपको बहुत खुशनुमा लगती हो, या कुछ ऐसी चीजें जिनको आप अभी भी सुधारना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं क्या? बिल्कुल है भाभी। ओके। जब 2012 में मैंने ज्वाइन किया था तो रोटरी एक फैमिली थी, आज के दिन वो एक बिग फैमिली बन गई। वेरी वेरी। और उसके Yes. साथ साथ अब हम 2 जनरेशन्स के साथ चल रहे हैं। Yes, right. ऑफ कोर्स। और अब आज के मेंबर्स में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई है न्यू जनरेशन्स में। बिल्कुल। पहले हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, बट हाँ अब हमें सेम टू सेम हमें उसके अदर प्रोजेक्ट्स मेंबर्स के लिए कराने पड़ते। मतलब आपका Fellowship एरिया projects. जो है वो बहुत वास्ट हो गया Vast है। हो गया। आपको बहुत सारी तरफ सोचना पड़ता है जी। कि मुझे हर किसी को यहाँ पर हैप्पी करना है जी। एक साल में, जी। जो कि बड़ा ही नामुमकिन काम है, लेकिन मुमकिन But और I think, नामुमकिन हाँ। तो आपके जेस्चर पे है, और मुझे लगता है आप दोनों मिलके Yes, and that बहुत way I बढ़िया think- बढ़िया सा कुछ कर रहे हैं, और आई थिंक सारे ही लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, है yes. ना? है ना Because रितु? आपने सारे एवेन्यूज को बहुत अच्छे से अभी तक तो Actually. 6 महीने में कवर किया, अलॉन्ग विद द क्लब सर्विसेज, हाँ. लुकिंग एट द यंगर जनरेशन, डेफिनेटली द सोशल सर्विसेज जो आपने की हैं, सोशली भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क है, एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट टू द टू ऑफ देम। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। हाँ, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, एक मोमेंट होता है, यस आई डिड इट, ये मैंने कर लिया, तो क्या ऐसा कोई मोमेंट जो अभी इतने 6 महीनों के दरमियान आपने महसूस किया हो कि यस आई डिड इट? जी भाभी, इसमें RRPL एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जब हमारी लास्ट रेट एंट्रीज की थी उसके बाद भी एंट्रीज उतनी नहीं आए थे। ओके। क्योंकि इंटर रोटरी भी उसमें शामिल था। हाँ। प्रोजेक्ट के एक दिन बिल्कुल। पहले कुछ मेंबर्स अदर क्लब्स के जागे और उन्होंने एंट्रीज दी। हाँ। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि हमें ये प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके। फर्स्ट टाइम कानपुर में इंटर रोटरी प्रोजेक्ट्स हुए और वो बहुत मुश्किल ठीक है। है, वो अच्छा हुआ, एंड गवर्नर सर भी आए और उन्होंने खुद रैकेट फेस्ट का स्टार्टिंग किया। चलिए, so you feel your ideated moment was the RIPL that Yeah. we had. बिल्कुल, बिल्कुल। Very good. I think that was a great program also that we all had रितु, and thoroughly enjoyable. नहीं तो एक चीज तुमने माफ की है, क्योंकि बीइंग फर्स्ट लेडी तुम भी और मैं भी, हम घर में इस एक साल के दरमियान कितनी क्या होती हाँ, है, yes. फाइट, गुस्सा। तो क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन यही हाँ, हम उसका कर लेते actually. हैं। ये दोनों, विवेक और सुनंदा दोनों से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट इज अ वन लाइनर एंड द फाइट बिगिंस। फाइट तो भाभी जैसे आपने कहा एकदम ट्रू है, चाहे गाड़ी में बैठी है चाहे घर में पहुंची है, फाइट तो बिल्कुल। किसी भी टॉपिक पे स्टार्ट हो सकता है। Okay. बट ये बच्चों को लेकर थोड़ा ज़्यादा है कि आप उनको ज़्यादा फेवर करते हैं। आप बताएंगे? आई एम सो मच जनरस, मतलब बस शॉपिंग इधर एक्सपेंसेस, वहाँ एक्सपेंसेस, चाहे क्लब के हों चाहे कोई भी हो, ऑलवेज रेडी टू एक्सपेंड। ओके, तो द फाइट बिगिंस बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी एक्सपेंसेस। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा शो जो मैं अभी हम दोनों ने मिल करके यहाँ पर प्रेजेंट किया, वो हमारे पूरे रोटरी क्लब के मेंबर्स को, जो उनके मन में थोड़े थोड़े से सवाल उठ रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ फाइनल स्टेटमेंट देना चाहेंगे अपनी तरफ से क्लब के मेंबर्स को, या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारा क्लब बहुत अच्छा है, यहाँ हर लेवल पे सपोर्ट है। आप यू कॉल देम, एवरीवन इज रेडी, इवन नाइट, डे, मॉर्निंग, एनी टाइम। तो बस क्लब के मेंबर से मिलिए, फेलोशिप और अच्छी करिए, बिकॉज द बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग। सुनंदा? बिल्कुल। हमारा जो इंटरनेशनल थीम है, सर्व टू चेंज लाइफ, जैसे हमने 2 years पैंडेमिक के फेस किए, एंड अगेन इट्स अ बिग थ्रेट, जस्ट वी आर जस्ट इट्स स्लोली कमिंग टूवर्ड्स अस, सो जस्ट डोंट गेट पैनिक। हम सब साथ हैं, रोटरी इज अ बिग Yes. फैमिली, वी ऑल टुगेदर एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व ईच एंड एवरीबडी, so just have faith. And that brings us to the end of this interview with the President and the First Lady. Hope you had a great time. Thank you, Vivek. Thank you, Sunanda. Thank you Thank so you, Bhabhi. much. Thank Okay, you so much. thank you. Thank you. The two projects that are very close to the heart of all Rotarians and ANGs are the Voice of RCKI and the Rotary Sports Tournament. Let's hear what the winners have to say about it. Good evening, friends. I'm Rotarian Deep Raj Singh. My journey in this prestigious club started 3 years back in 2018.
since then, it has been a wonderful experience for me and my better half in this club, and we have been participating majorly in all the events, either they are social, entertainment or sports. Voice of RCKI has always been the most popular and prestigious event of Rotary Industrial. I have been participating for last 2 years in this event, though I could not bag the trophy, but I managed to do very well. I came to the finals in both the years, but still I was short from winning this trophy. But this year it was mine and I did good, and I sang better though in front of all the judges who were there. So they gave me this trophy. I thank to all the Rotarian friends or my fellow organizers who thought that I was capable of winning this trophy. Hello everyone, I am Rotarian Divya Bandhu, interior designer by profession and passionately a sports person. I was into sports since my childhood. I was a basketball state level player and I enjoyed playing all the sports. But after my marriage, this opportunity was missed. Age is no barrier, it's just a limitation which we put on our minds. So I realized that my greatest asset is not only my physical ability, but my mental ability too. And this I realized when I joined RCKI last year, where I got the opportunity to play badminton, table tennis, cricket. And that helped me to cross the boundaries unknown. Thank you RCKI for organizing such events where we can follow our passion. And special mention, the cricket match, which was specially arranged for fans and it was enjoyed by one and all. So RCKI rocks. It is the best chapter in Kanpur. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने एक दूसरे सेगमेंट पे इस वीडियो के। ये वीडियो जो कि बाइस्कोप आधारशिला है, उसका दूसरा सेगमेंट हमने जो लिया है वो बड़ी ही मजेदार उसकी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि मैं, ऋतु, सुषमा, उषा भाभी, हम सब बैठे हुए थे और इसी वीडियो के बारे में वर्कआउट कर रहे थे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। बातें करते करते मेरे मुंह से एक बारी निकल गया कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं एक अकेले ट्रिप मारूं, और मेरा ये कहना था कि ऋतु ने पकड़ लिया और पकड़ा ऐसा कि हमने इसी को अपना नया सेगमेंट बना दिया। जी हां, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन वी से अ सोलो ट्रिप, ये है हमारा अगला सेगमेंट। हम सब एक सोलो ट्रिप करना चाहते हैं और सोलो ट्रिप किसी की नजरों में पहाड़ है, किसी की नजरों में एडवेंचर है, तो क्या है वो चलिए हम सब देखते हैं अपने मेंबर्स के द्वारा। अंकुर, तुमने कहा सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप में मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं अकेला और कोई नहीं, और मैं चला जा रहा हूं अपनी मस्ती में, अपने धुन में। ना फोन हो, ना कोई चीज हो, बस गाड़ी हो, मेरी गाड़ी और पैसा हो। और कुछ इसको इस तरह कह सकते हैं, मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। और अचानक शायद एक राह रुक जाए तो दूसरे, एक राह रुक गई तो और खुल गई, और ऐसे चलते चलते कहीं हो सकता है कि एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। लेकिन फिर भी मैं उसका साथ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे घर वापस जाना है। I'm really fortunate to have had quite a few solo trips so far. I have traveled a lot with my family in India and abroad.
but going on a solo trip with friends is an amazing experience. They were fun trip थे, spiritual trip थे, and going all alone. एक गोवा का ट्रिप जो मुझे आज भी याद है, जो मैं अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंड्स के साथ गए थे, जो 25 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक थे, और उनके साथ देर रात तक क्लब में घूमना, सड़कों पर घूमना, डांस करना, होल्डिंग एन एरेका फॉर 10 minutes and non-apologetic about that thing. That was also an amazing experience. Spiritual trip जो मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ था, उसमें rediscovering ourselves, reinventing ourselves, connecting with the Almighty, connecting to your soul, सुबह से लेकर रात तक एक different kind of discussions में involved रहना, that was also an amazing experience. और एक सोलो ट्रिप जहां पर मैं बिल्कुल अकेले गई थी, कोई भी नहीं था, ना फ्रेंड्स ना फैमिली, वहां पर लोगों को जानना, उनके साथ एडजस्ट करना, नए फ्रेंड्स बनाना, इट वाज ऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगी, इफ यू हैव नॉट गिवन दिस टू योरसेल्फ, प्लीज गिव दिस गिफ्ट. थैंक यू. हाय फ्रेंड्स. ऋतु जी, सबसे पहले सोलो ट्रिप के बारे में अगर आपने पूछा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले माउंटेन्स, ट्रैकिंग, बैकपैक, कैंप फायर, म्यूज़िक, ये सबसे पहले ये चीज़ें दिमाग में आती हैं. और इसमें वहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनके साथ न्यू फ्रेंड्स, और इस तरीके की ही चीज़ सबसे पहले मेरे दिमाग में आई है. आई डोंट नो वेदर इट इज़ ओके विद यू और नॉट. आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस. थैंक यू. Traveling alone can be scary at first, but the reward far outweighs the intimidation. With good planning, research, and a journal, you can ace your solo trips. Solo travel is about getting out of your comfort zone, exploring new things, and gaining a better understanding of yourself. It's a complete separate experience from traveling with someone you know. Last year, for the first time, I went for trekking with a complete unknown group, and it gave me an opportunity to see the world in a different way, making a lasting connection with people and places. So, the key is to be aware and cautious of your surroundings and how much you share with your co-travelers. I would end by a famous quote: "World is a book, and those who do not travel read only a page." Hello friends, we wind up this part of Adharshila Bioscope with a magical recital treat penned down during our lockdown by our past president Rotarian Sanjeev Bansal. Let's listen to him. रात काली, गहरी और अंधियारी हो सकती है, मगर होने से सुबह की लाली को रोक नहीं सकती है. ना घबराना, आज यदि पसरा सन्नाटा है और जीवन पर लगा एक अर्ध विराम है, लेकिन फिर भी जीवन उतना ही सुंदर और आगे समय उतना ही अविराम है. याद करो कि ये तुम थे, हाँ तुम ही तो थे जो हर मुश्किल से लड़े और करके संघर्ष आगे बढ़े थे. खड़े धरती पर, दृष्टि गगन पर थी, लक्ष्य पाने की चाह और दृढ़ शक्ति असीमित थी. झुका देंगे पर्वत, मिला देंगे धरा को गगन से. झुका देंगे पर्वत, मिला देंगे धरा को गगन से. करना पड़े आरंभ तो आरंभ से करेंगे. निकल कर आएंगे हर मुश्किल से हम. ना झुके हैं ना रुके हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे हम. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो आधारशिला बाइस्कोप के एंड में मैं आप सबको अंकुर गुड बाय करती हूं, और आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा. ये पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी, सुषमा, उषा भाभी और ऋतु की बहुत ढेर सारी मेहनत लगी है. एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक्स टू द मेंबर्स, जिन्होंने इसमें इतने अच्छे अच्छे व्यूज और इतना कोऑपरेट किया हम सबको साथ. लेकिन फिर भी
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसके दूसरे वीडियो के साथ मैं हमारी टीम के साथ बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाली हूँ, कुछ नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स के थ्रू, कुछ नए आइडियाज को, अपने मेंबर्स के आइडियाज को लेकर के। तो तब तक के लिए गुड बाय।